Jain friends, today class is very interesting because in this class we discuss important lesson of English grammar noun. Today class is about to in English as well as in Hindi. First we discuss in English and then after in Hindi. So now let us start our topic noun. There is definition of noun, name of some things and that is used in a sentence, subject or object. The definition of first part, name of some things. Name of some things, that is person, animal, place and things. Person as Ram, Syam, Sita. Animal as cow, goat, dog. Place as Agra, Delhi, Lucknow, and things as pen, book, copy. And the second part of definition, that is used in a sentence, subject or object. Now we look at how we can use noun as a subject or object. It is a sentence, Ram goes to school. There is Ram, Ram is proper noun. Ram is proper noun and school, that is common noun. School is common noun and Ram is proper noun. So Ram is subject, that is proper noun, and school, that is object, that is common noun. So the second part of definition, that is used in a sentence, subject or object. So the subject is Ram and object is school. Now we discuss type of noun. First, common noun. Second, proper noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. And last, abstract noun. So there is 5 kind of noun. The common noun, there are many fingers shown in the figure. We can tell all fingers a common name, finger. So the name finger is a common noun. And second, the proper noun, when we name the fingers as thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger. So the name of fingers is called proper noun. As thumb, index finger, and other middle finger, ring finger, little finger. When we named the finger, that is called proper noun. Third, collective noun. When we collect the all fingers as the fist, it is called the collective noun. And fourth, material noun. In the fingers, blood, muscles, bones is available, that is called material noun. And fifth, abstract noun. When with this fist punch, I feel some pain. So that is feeling and pain is called abstract noun. Next video we discuss all part of noun in detail. There is briefly description of the noun. चलिए अब हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। नाउन क्या है दोस्तों? नाउन का डेफिनेशन है नेम ऑफ समथिंग्स, किसी चीज का नाम,
and that is used in a sentence subject or object, और जिसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। किसी चीज का नाम और जिसका प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो देखिए पहला जो है डेफिनेशन का जो पहला पार्ट है, नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज का नाम। किसी चीज का नाम जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी चीज का नाम। तो ये सारे हो गए नेम ऑफ समथिंग्स। तो देखिए पर्सन में, पर्सन मीन्स व्यक्ति, कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति में कैसे ये आ जाएंगे, राम, श्याम, सीता, ये सारे क्या हुए, व्यक्ति हुए। एनिमल में देखा जाए तो ये हो जाएगा काऊ, गोट, डॉग, ये सारे क्या हुए, एनिमल हो गए। प्लेस में अगर देखा जाए तो प्लेस जैसे आगरा, दिल्ली, लखनऊ, तो ये सारे हो गए प्लेस। थिंग्स में पेन, बुक, कॉपी। तो जो डेफिनेशन का पहला पार्ट है नेम ऑफ सम थिंग्स, वो हो गया पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, और भी चीजें आएंगी, आइडिया, एक्शन, और भी चीजें आ जाएंगे, लेकिन मेनली ये है। अब देखिए जो डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, दैट इज यूज्ड इन ए सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिसका प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो जैसे हमारा एक सेंटेंस है, राम गोज टू द स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब देखिए यहां क्या है, राम, राम जो ये दिया गया है, राम हमारा है सब्जेक्ट और स्कूल है ऑब्जेक्ट। राम क्या हुआ, राम हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये है क्या, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट जो है राम, ये एक नाउन है। दूसरा देखिए स्कूल, स्कूल ये है ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट कह रहा वही है ये स्कूल, और स्कूल भी देखिए ये क्या है, ये है हमारा कॉमन नाउन, ये है कॉमन नाउन। तो इस तरह से देखा जाए तो राम जो एक सब्जेक्ट है ये भी एक नाउन है, और जो स्कूल है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक नाउन है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हुए, नाउन हुए। एक कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन, लेकिन दोनों ही नाउन है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का यूज किया जाता है। अब चलिए हम इसके प्रकार देख लेते हैं कि नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों को अच्छे से हम समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये है दोस्तों टाइप ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन के यहाँ 5 प्रकार हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मैटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे ये देखिए दिखाया गया है, एक हाथ की 5 उंगलियों को दिखाया गया है। ये है देखिए थंब, ये है इंडेक्स फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, ये है रिंग फिंगर और ये है लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर। अब देखिए ये सारे को हम क्या कहेंगे, फिंगर ही कहेंगे, चाहे वो थंब हो या फिर ये पहली उंगली हो या दूसरी उंगली या तीसरी उंगली, जितनी भी उंगलियां दी गई हैं इन सबको हम क्या कहेंगे, उंगली ही कहेंगे। इन सबको हम क्या कहेंगे, फिंगर ही कहेंगे। तो इन सबका एक कॉमन नेम क्या हो गया, फिंगर। तो जो सारी चीजों का एक कॉमन नेम होता है उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो इन हाथ की सारी उंगलियों को हम क्या कहते हैं, अंगुली यानी फिंगर कहते हैं। तो फिंगर हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। अगर इन्हीं उंगलियों का हम नाम रख देते हैं, जैसे देखिए पहली उंगली का नाम हम रख दिए थंब, दूसरी का इंडेक्स फिंगर, तीसरी का मिडल फिंगर, चौथे का रिंग फिंगर, पांचवी का लिटिल फिंगर। तो अगर हम इन सारी उंगलियों का नाम रख देते हैं तो जो नाम रख दिया गया उसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन।
अब प्रॉपर नाउन जैसे क्या हो गया, थंब हो गया, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, तो ये जो नाम रख दिए गए सारी उंगलियों के, यही नाम क्या हो गया, उनका प्रॉपर नाउन हो गया। अगर नाम नहीं रखा गया है, सभी को एक ही नाम से पुकारा जाएगा तो उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। अगर एक एक का नाम रख दिया गया तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। अगर इस पांचों उंगलियों को हम कलेक्ट कर लें, एक मुट्ठी में बांध ले, तो ये मुट्ठी हमारा जो हो गया ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अगर इन पांचों उंगलियों को हम एक कर लें तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे मुट्ठी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। फोर्थ है मटेरियल नाउन। इन अंगुलियों में कुछ ब्लड है, कुछ मसल्स है, कुछ बोन है, तो ये सारे मटेरियल जो हैं इन्हीं को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जो भी मटेरियल इसमें है उसी को कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे इसमें क्या है, ब्लड है, बोन है, मसल्स है, और भी चीजें हैं, तो जो जो चीजें इनमें हैं उसी को कहेंगे हम मटेरियल नाउन। लास्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इस पांचों उंगलियों को कलेक्ट करके मुट्ठी बना के किसी को मारा जाए तो उसे जो दर्द होगा, जो फीलिंग होगी, वो होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो ये फीलिंग होगा, जो दर्द होगा, जो फीलिंग आएगी, जो पेन होगा, वो हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इस तरह से ये हमारे पांचों नाउन हुए। पहला कॉमन नाउन, जब एक ही नाम से सारे को पुकारा जाए तो उसे कॉमन नाउन। अगर सबका नाम रख दिया गया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इनका नाम रख दिया गया एक एक का, तो क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। अगर सबको इकट्ठा कर लिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, मुट्ठी बना लिया जाए, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। और इस अंगुलियों में जो जो हमारे मटेरियल हैं, जैसे ब्लड है, मसल्स है, ये सारी चीजें जो हैं ये हो गई मटेरियल नाउन। और अगर इसी को बंद करके मुट्ठी बना के किसी को मारा जाए तो जो फीलिंग आएगी, जो उसको दर्द होगा, वो हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ तो ब्रीफली केवल थोड़ा थोड़ा बताया गया है नाउन के बारे में। अब हम जो ये बताया गया है यहाँ, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सब को एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।